میرے محترم دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، 3 دن سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں 112 نمبر کی آیت ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اتنے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ التائبونا، پہلے توبہ کر لو، عابدونا، پھر میری عبادت کرو، حامدونا، میرا ذکر کرو، توحید پہ قائم رہو، سائحونا، روزے رکھو، راکعون، ساجدون، رکوع کرو، سجدے کرو، نماز پڑھو، آمرون بالمعروف، عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، والحافظون لحدود، اللہ کی بتائی حدوں کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ نے التائبون کو سن لیا، عابدون کو سن لیا، کل حامدون کو آپ نے سنا۔ اب حامدون کو توڑنے کے لیے ہمارے ہندوستان کے گنتی کے مسلمانوں نے وسیلے کا ذریعہ لیا توحید توڑنے کے لیے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کے سامنے فیصلہ ہے۔ بزرگان دین ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کا انکار نہیں، جس کا بیان انشاءاللہ کل بڑی طویل بحث سے آئے گا، اور جتنے ہندو صاحبان ہیں ان کو بھی کل کی دعوت دے دی جائے، ان کے بھی دھرم کا بیان ہوگا اور ہمارا بھی بیان ہوگا، ان کے بھی بزرگوں کا بیان ہوگا، ہمارے بھی بزرگوں کا بیان ہوگا۔ تمام جتنے آپ کے ملنے جلنے والے ہو ان کو بھی دے دینا، بغیر ملنے جلنے والے ہو ہندو صاحبان ان کو بھی دے دینا، وہ بھی آگے ہم غور کریں بیٹھ کر۔ اس میں کوئی جھگڑا کرنا نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، ہم کو سوچنا اور سمجھنا ہے کہ آیا ہم کیا کریں، یہ کریں یا وہ کریں، کیا کریں یہ سوچنا ہے۔ پھر جس کو پسند آئے بات قبول کرے، نہ پسند آئے تو کچھ بھی نہیں، اپنی اپنی راہ لگے۔ بہرحال آج وسیلے کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، اور کل عورتوں کا بیان ہوگا اور خصوصاً بیان ہوگا، بزرگان دین کا بھی بیان ہوگا، ہندو صاحبوں کے دھرم کا بھی بیان ہوگا، عورتوں کا بھی بیان ہوگا۔ قریباً کل 3 گھنٹے تک تقریر چل رہے، اس لیے آپ صاحبان اپنے اپنے حاجت سے فارغ ہو کر آئیں، اور کل جو اپنی ماں بہن کو نہیں لائے گا وہ پچھتائے گا، سمجھے آپ؟ حالانکہ ہماری تندرستی جواب دے چکی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی سمجھانے میں کمی نہیں کریں گے۔ جب بھائی مرتا ہے تو بہن رونے میں کمی نہیں کرتی، سمجھے؟ مگر اب مر گیا کیا کریں اب اس کو۔ تو قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 6 رکوع میں 35 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ اس قرآن میں عربی میں وسیلہ لفظ ہے، اور اتنی ہی آیت میرے محسن صاحبان پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں پڑھتا مولوی۔ جو وسیلہ ثابت کرتا ہے وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ دیکھو صاحب قرآن میں وسیلہ موجود ہے، اور وہابی لوگ وسیلے کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اس وسیلے کا جو لفظ ہے اس سے مراد اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں، کسی بزرگان دین کا وسیلہ نہیں۔ ابھی آیت آدھی باقی ہے، آدھی آج بیان ہوئی، آدھی چھوڑ دیے، تو جب آدھی آج چھوڑ دیے جائے گی تو مضمون صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھو قرآن کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ 3 الفاظ ہیں، پڑھو مت کھیلو،
पढ़ो मत खेलो, ये मत है। इस मत को आप इधर लोगे तो मजमून बदल जाएगा, मत को इधर लोगे तो बिगड़ जाएगा। पढ़ो मत, ये मत को इधर ले लिया। अब कहो बोलो खेलो, तो पढ़ने की ममानियत हुई, खेलने की इजाजत हो गई। पढ़ो मत खेलो, तो खेलने की ममानियत हो गई, पढ़ने की इजाजत हो गई। तो ये मत को जिधर लोगे इधर गड़बड़ होगा। तो जहाँ ठहरने का न ठहरो, जहाँ न ठहरना को ठहरो, तो कुरान का मतलब बिगड़ जाता है और उससे इंसान के ऊपर कुफ्र का फतवा आ जाता है। तो आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह को नजदीक होने के लिए कोई जरिया तलाश करो। वो क्या जरिया है? आगे फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में मेहनत करो, ये है वसीला। लअल्लकुम तुफलिहून, यही लोग फला पाने वाले हैं, नजात पाने वाले हैं, छुटकारा पाने वाले हैं। इसमें 3 हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो और कोई जरिया तलाश करो और अल्लाह की राह में मेहनत करो। ये 3 हुक्म है एक आयत में। तो पहला हुक्म अल्लाह से डरो, ये तो वाजिब। और डरना ये नहीं है कि जैसे हम सांप बिच्छू से डरते हैं, डरना वो है जो अल्लाह के कहे हुए कामों को करो और मना कर रहे हुए कामों से रुक जाओ, ये है डरना। तो ये वाजिब। और ये तीसरा अल्लाह की राह में मेहनत करो, ये भी वाजिब। तो बीच वाला मुस्तहब तो नहीं होगा ना। एक ही कुरान में 3 एक आयत में हुक्म है, तो तीनों वाजिब होंगे। अल्लाह से डरो वो भी वाजिब, वसीला भी वाजिब, अल्लाह की राह में मेहनत भी वाजिब। तो हनफिया की किसी किताब में वसीले को कोई दर्जा नहीं दिया है। कुरान से जो मसला साबित होता है उसके 2 हुक्म है, या तो फर्ज या तो वाजिब। अगर कुरान से वसीला साबित होता तो या तो फर्ज होता या वाजिब होता, लेकिन हनफिया की किसी किताब में इसको कोई दर्जा नहीं। तो मालूम यह हुआ कि इस आयत करीमा से वसीले की कोई जोड़ नहीं। समझे आप? अब चलो आगे चले। तिरमिज़ी शरीफ जल्द पहली सफ़ा नंबर 46 हदीस नंबर 189 आज़ान के बारे में लिखा है। रावी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज़ान के बाद जो हम दुआ मांगते हैं उसमें जो वसीले का लफ्ज है उससे भी औलिया अल्लाह का या बुजुर्गान दीन का वसीला नहीं, बल्कि उस वसीले से मुराद या तो जन्नत में कोई एक जगह है जिसका नाम वसीला है, या हाशर के मैदान में जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु खड़े रहकर शफाअत करेंगे, उस खुसूसी जगह का नाम वसीला है। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों से ये कहा कि तुम अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ताला मेरे को वही जगह इनायत फरमावे। इससे भी वसीला नहीं है। तो वसीला है कहाँ? चलो घोल डालेंगे इंशाल्लाह दीन को, किताबों को, कहीं न कहीं से जितना भी होगा लाएंगे। हम अल्लाह के फजल और करम से दयानतदारी का बयान करेंगे, खयानत नहीं करेंगे, बदनाम को भी है। समझा? कहाँ है वसीला? चलो निकालें। सही बुखारी शरीफ जिल्द 3 पारा 24 सफ़ा नंबर 218 हदीस नंबर 909 आदाब के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 102 हदीस नंबर सफ़ा नंबर 202 हदीस नंबर 1014 बाब नंबर 472 तौबा के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द सफ़ा नंबर 712 हदीस नंबर 4693 एहसान के बयान में लिखा है। चौथी किताब मज़ार हक जिल्द 4 की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 126। 4 किताबों के हवाले हैं। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे और सफर में जा रहे थे। इत्तेफाक से बारिश और हवा का तूफान आ गया तो एक गार में वो घुस गए। अब जो तूफान चला
ऊपर से एक पत्थर रुका तो गाड़ के मुंह पे आके बंद हो गया। अब तीनों फंस गए, निकल नहीं सकते। तीनों ने जोर लगाया, भाई देखो मारो जोर, हिलता भी नहीं है, भैया मर गए, अब क्या करेंगे। तो एक आदमी ने कहा, बोले भाई आप लोगों ने कोई नेक काम किया हो तो उस नेक अमल का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगो, ये पत्थर हटे नहीं तो अब हटने वाला नहीं अपनी ताकत से। तो एक आदमी ने दुआ मांगनी शुरू की। उसने क्या काम किया था, एक मजदूर को मजदूरी पे लगाया था और मजदूरी में कुछ धान देना तय हुआ था कि इतना धान हम आपको देंगे। जब उसने मजदूरी कर ली तो वो मालिक ने धान दिया उसको, तो लेने वाले में गलतफहमी हो गई। लेने वाले मजदूर ने कहा कि तेने ज्यादा कहा था और कम दे रहा है। उसने कहा सेठ ने कि भाई मैंने जितना कहा था इतना ही दे रहा हूं। उस मजदूर को गुस्सा आ गया और कहा तो मालदार है, हमारे गरीबों पे जुल्म करता है। वो नहीं लिया और चला गया, वो धान नहीं लिया। अब उस जमाने में जो बोए उसकी जमीन थी, जमीन का कोई मालिक नहीं था। बारिश हुई तो उस मालिक को एहसास हुआ कि इस गरीब के धान को जमीन में बो दिया जाए, अल्लाह बरकत देगा। बो दिया उसके नाम से, अल्लाह ने बहुत बरकत दी। कुछ रकम भी हो गई, कुछ बोरे धान के हो गए। फिर दूसरे साल बोया, ज्यादा धान बोया तो और ज्यादा बरकत हुई। कोई जानवर ले लिए, ऐसे 3-4 साल करता रहा, माल भरता ही गया। 3-4 साल के बाद वो घूमता घामता आया कि मेरी मजदूरी थे। तो उसने कहा ये जानवर, ये धान के बोरे, ये रकम सब तेरे ले जा। तो उसने कहा मेरी मजाक मत कर, अल्लाह से डर, तू मालदार है तो भले रहा, मेरा मजदूरी मुझे दे दे। तो उसने कहा बाखुदा मैं आपकी मजाक नहीं करता। उसने सारी तफसील समझाई उसको, तो उसकी समझ में आ गया और खुशी खुशी वो माल लेके चला गया। तो उसने कहा है अल्लाह वो मेरा अमल सिर्फ तुझे राजी करने के लिए था, तो उस अमल का वास्ता दे तो इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर जरा सा हट गया। अब उसमें सर डालते मगर घुसता नहीं। अभी यार अभी कम ये दूसरे से कहा यार तू भी मांग, कोई कहने पे कुछ भला काम किया है कि नहीं बाबा मांग तू भी। अब वो दुआ मांगने लगा। उसने क्या काम किया था, वो एक लड़की पे आशिक था। लड़की किसी तरह से रजामंद नहीं हो रही थी। किसी मजबूरी पर वो 100 दिनार या 100 दिरहम के ऊपर रजामंद हो गई कि इतनी रकम मुझे तू देगा तो मैं तुझे राजी कर दूंगी। उसने रात दिन काले धोले काम शुरू कर दिए पैसा जमा करने के लिए। इतनी रकम जमा कर ली और जमा करके उसके हाथ में दे दी। जब उसके हाथ में दे दी, उसका हाथ पकड़ा तो लड़की कांपने लगी। तो लड़के ने पूछा तू क्यों कांपती है, काय को थर्राती है, मैंने तुझे पैसा दिया, तू इतना तेने मांगा। तो लड़की ने कहा मैं अल्लाह से डरती हूँ। अब इतना कहना था कि ये भी कांपने लगा और लड़की को छोड़ दिया कि तू चली जा अल्लाह के वास्ते, जल्दी चली जा, ये रकम भी तू ले जा, ये भी तुझे मां, तू चली जा। वो चली गई। तो इसने कहा है अल्लाह वो मेरा अमल तुझे राजी करने के लिए था, तो उस अमल का वास्ता देता इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर जरा सा और हट गया। अब भी मैं सर नहीं घुस रहा। तीसरे से कहा तू भी कुछ मांग यार, तेने भी कुछ दुनिया में अच्छा काम किया कि नहीं किया, तू भी मांग तो अब तो मसला हल हो जाएगा। अब तीसरा मांगने लगा। तीसरे ने क्या काम किया था, वो बकरियों के चरवाया था और बकरी चरवा कर जब आता तो दूध दो कर पहले अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद बाल बच्चों को पिलाता। एक मर्तबा बहुत दूर निकल गया, आने में देर हो गई तो उसके माँ बाप सो गए। तो ये दूध दो कर आया मगर माँ बाप सो गए थे। सिराने खड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चे पैरों में लपकने लगे, अब आप दूध पिलाओ, अपा दूध पिलाओ। अब्बा ने कहा जब तक मेरे माँ बाप नहीं उठेंगे नहीं पियेंगे मैं नहीं पिलाऊंगा। बहरहाल वो बच्चे ऐसे ही सो गए। जब उसके माँ बाप उठे, उनके हाथ पैर धुलाए, उनको दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। तो उसने कहा है अल्लाह वो मेरा अमल तुझे राजी करने के लिए था,
تو उस अमल का वास्ता देते इस पत्थर को जरा हटाते। तो फिर जब वही दुआ मांगी तो जरा सा पत्थर हट गया, तो एक आदमी के निकलने की जगह हो गई। तो एक एक करके तीनों आदमी निकल गए। ये है वो हदीस। बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक पुराने जमाने का वाकया बयान कर दिया कि एक जमाने में ऐसा हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज ही पर फतवा होता है। समझे आप? अब इस पर हनफिया का फतवा, इस पर हनफिया का फतवा दुर्रे मुख्तार उर्दू तर्जुमा गायतुल अवतार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 230 बाबुल खतर के बयान में लिखा है। दूसरी किताब फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 267 किताबुल करहत के बयान में लिखा है। तीसरी किताब ऐनुल हिदायत जिल्द 4 सफ़ा नंबर 326 करहत के बयान में लिखा है। दुर्रे मुख्तार फतवा आलमगीर के अल्फाज थोड़े से हैं, ऐनुल हिदायत में तवील बहस है। तो हम ऐनुल हिदायत की इबारत आपके सामने बयान करते हैं कि किसी ने इस तरह से दुआ की कि बाहक के मोहम्मद रसूल मुझ गुनहगार की कर दुआ कबूल। तो इस तरह दुआ का मांगना मकरूह है, क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर किसी का हक नहीं, और हक वो होता है जो बगैर अदा के छुटकारा नहीं। ये तो हक साबित करके दुआ मांगना मकरूह है। बाज आलिम कहते हैं कि हक से मुराद अगर वाजिब की ले रहा है तब तो मकरूह है, और मुस्तहब और मुबाह की ले रहा है तो मकरूह नहीं है। बहरहाल आगे अल्फाज ये है के कि यूं कोई दुआ मांगे कि अल्लाह तेरी रहमो करम से और काबतुल्लाह की अजमत की बरकत से, कुरान करीम की अजमत की बरकत से, फला सलफ स्वालिहीन के अमल स्वाले की बरकत से मेरा इतना काम कर दे। तो इस तरह दुआ मांगे तो इसमें मुजायका नहीं है। वसीले को कोई दर्जा नहीं, ना फर्ज का, ना वाजिब का, ना सुन्नत का, ना जायज का, ना मुस्तहब का, ना मुहतसन का। यही इस तरह अगर दुआ मांगी मुखातिब अल्लाह से, अल्लाह तेरी रहमो करम से और काबतुल्लाह की अजमत की बरकत से, कुरान करीम की अजमत की बरकत से, फला यानी फला बुजुर्ग के अमल स्वाले की बरकत से, बुजुर्ग कोई चीज नहीं अमल चीज, मेरा इतना काम कर दे। तो अल्लाह से मुखातिब पे दूसरों की बरकत के लिए दुआ की। तो इस तरह से अगर दुआ मांगी तो इसमें हर्ज नहीं। गुजराती में किए से एना दर वांधो नथी, समझा? मगर इतनी सी चीज हमको कितनी गुमराही तक ले गई, कितनी हद तक ले गई, उसका अंदाजा आप लगाए। इंशाअल्लाह हवाले हमारे जमे रहेंगे, फैसले मेरे मोहसिन साहबान आप साहबान देंगे। अब आगे चले जरा। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 8 सफ़ा नंबर 457 हदीस नंबर 1893 व्यू के बयान में लिखा है। दूसरी किताब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 1107 व्यू के बयान में लिखा है। रावी हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि हराम जाहिर है और हलाल जाहिर है, इन दोनों के बीच में शक वाली बातें हैं, यानी करें कि न करें, करें कि न करें। तो जो इंसान शक वाली बातों से बच गया वो बादरजा ऊला गुनाहों से बच जाएगा, और जो शक वाली बातों में फंस जाएगा वो अनकरीब गुनाह में भी फंस जाएगा। फिर इसी हदीस में एक तवील बहस है कि जैसे बड़े बड़े नवाबों के, बड़े बड़े राजाओं के चरागाहें होती है ना, चरागाहें वीड़ी जने अपने किए दरबार ने वीड़ी हम बीजा को ना जानो न चढ़े, ऐसे चरागाह होते हैं। उन चरागाह के इर्द गिर्द अगर कोई अपने जानवर चराएगा तो यकीनन उस भीड़ में भी जानवर घुस जाएगा, यानी शक के करीब ही जाएगा तो यकीनन वो गुनाहों में फंस जाएगा। जी बिल्कुल साफ और सुथरा अमल है, उसको कीजिए। शक वाली बात में फंसने से हमको क्या जरूरत। अब इस हदीस पर हनफी का फतवा,
فتاوی عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 237، دوسری کتاب بین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 743 کہ بدعت اور واجب اختلاف پڑے. بعض عالم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، اور دونوں اپنی دلیلیں دے رہے ہیں تو اس پہ عمل کیا جائے. کیوں کہ اگر جب وجوب کی دلیل مل رہی ہے واجب کی تو بدعت نہیں ہوگی، کم سے کم سنت غیر موقوفہ تو ہوگی. اور بدعت اور سنت میں اختلاف پڑے تو اس پہ عمل نہ کرے. بدعت میں اور سنت میں اختلاف پڑے تو اس پہ عمل نہ کرے. کیوں کہ اگر سنت ہوگی بھی تو غیر موقوفہ ہوگی، جس کو نہیں کرنے سے کوئی سوال نہیں، اور اگر بدعت ہوگی تو پھنس جائیں گے. یہ تو ایک مسئلہ جو جب ہو شک والا اس میں. اب قرآن کو سنیے. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں 59 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول سے بات مانو، اور تمہارے میں جو صاحب حکومت ہے ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. اور اگر آپ صحابوں میں کوئی ناسمجھی ہو گئی، کوئی غلط فہمی ہو گئی، کس مسئلے میں بحث ہو گئی، تو میں ہو گئی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سبحان اللہ، قربان جائے اس کی رحمت پر. کس طرح ہم کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی کسی مسئلے میں آپ کو الجھاؤ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ آگے فرمایا اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. تو اس بات کو جس میں آپ کا اختلاف پڑا، نہ سمجھی ہو گئی، تو میں ہو گئی، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. وہاں سے جو بھی حکم ملے بغیر چوں چاں کیے مان لو. اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا. یہ کام بھی اچھا اور اس کام کا انجام بھی اچھا ہے نا بھیا. اس میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں، کوئی ایچ پیچ والی بات نہیں جی. لیکن ہماری بدقسمتی سمجھیں یا ہمارا امتحان سمجھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جماعتیں ہماری ہو گئی مسلمانوں کی. ایک مسلمان کی جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرتی ہے، اس کو منافق کہا گیا. اور ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے حکم کے مطابق کام کرتی ہے، اس کو مومن کہا گیا. ان دونوں جماعتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. یعنی اللہ رسول بات کا انکار کر دینا قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 6 رکوع میں 48 نمبر کی آیت ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. کسی مسئلے میں، کسی احکام میں، کسی جھگڑے میں ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول سے بات رکھ دی جاتی ہے کہ بھئی حکم یہ ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. ایک جماعت انکار کر جاتی ہے. 1-2 آدمی نہیں، 5-25 نہیں بھائی میرے، پوری جماعت مستقل انکار کر جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول بات کا انکار کر جاتی ہے. بتائیے یہ اچھا ماننے والی جماعت، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول بات کا انکار کیسے کر دے گا آدمی.